لاڑکانہ میں 9 سالہ بچہ نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق۔ علاقہ مکینوں نے بچے کو چاند کا اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے بچے کی موت کی تصدیق کر دی۔ ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ جیکب آباد میں مسلح افراد نے فائرنگ کرنے والی خاتون اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب۔ مقتولین کی شناخت 50 سالہ خادم حسین اور 45 سالہ صدوری خاتون کے نام سے کر لی گئی۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سرگودا میں جنگ روڈ پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی جاں بحق۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاک پتن میں سنگ دل ماں نے مبینہ طور پر 14 سالہ بیٹی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور سیالکوٹ میں تھانہ ایئرپورٹ پولیس کی کارروائی، 2 کلو 200 گرام چرس اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ ڈی پی او سید ذیشان رضا کا کہنا ہے کہ انسداد جرائم اور شہریوں کو تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ السلام علیکم، کوہ نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پنجاب کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کی شاندار فتح پر میڈیا نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے امیدوار NA 50 اور سابق چیئرپرسن اٹک ایمان طاہر صادق کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی تاریخی فتح سے واضح ہو گیا کہ پاکستان کی عوام کی واضح اکثریت عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ ضمنی الیکشن میں بھرپور کیمپین چلانے پر پارٹی ورکرز اور سپورٹرز مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ایک بار پھر بھاری اکثریت سے عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوں گے۔ میرٹ پر فیصلے ہوں گے تو تحریک انصاف کے قافلے کو روکنا کسی سیاسی جماعت کے لیے اب ناممکن ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام نے بے تحاشا مہنگائی اور خراب کارکردگی پر 13 جماعتی اتحاد کو مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب اور مرکز میں حکومت اور انتظامیہ پر مکمل کنٹرول کے باوجود 20 سے 16 نشستوں پر شکست دے کر عوام نے PDM سے بڑھتی مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بدلہ لے لیا ہے۔ پنجاب کے باشعور عوام نے واضح کر دیا ہے کہ عوام اب کارکردگی کی بنیاد پر ہی کسی بھی امیدوار کو ووٹ دینے کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کابینہ کا 77واں اجلاس میں 13 نکاتی ایجنڈا شامل ہے۔ جنگلات میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز لگانے کی منظوری ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی ایبٹ آباد کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اراکین کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ تحصیل بٹ خیلہ میں ریسکیو اسٹیشن کے قیام کے لیے زمین کی منتقلی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کابینہ کا 77واں اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں 13 نکاتی ایجنڈا شامل ہے۔ جنگلات میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز لگانے کی منظوری ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی ایبٹ آباد کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اراکین کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ۔ تحصیل بٹ خیلہ میں ریسکیو اسٹیشن کے قیام کے لیے زمین کی منتقلی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ سیکرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب ناصر جمال ہوتیانہ کا راجن پور کے سیلابی علاقوں اور PDMA کی جانب سے ریلیف کیمپوں کا دورہ۔ PDMA اور ضلعی انتظامیہ راجن پور کی جانب سے متاثرہ افراد کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔
सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने कहा कि पीडीएमए और इंतजामिया सैलाबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार ला रही है। मुतासरा अफराद को रहाइश, खाने पीने की अशिया, सेहत की सहूलियात समेत जानवरों के लिए चारे के इंतजाम को भी यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैलाबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए अमला और मशीनरी मसलसल काम कर रही है। मुतासरा अफराद को जल्द इनके घरों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और साबिका वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि इंपोर्टेड हुक्मरान कहते हैं हमें इंतखाबात कराने की जल्दी नहीं, क्योंकि जो इन्हें लाए हैं वो इनसे खुश हैं, इन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने महंगाई के नाम को मुश्किल फैसले का नाम दे दिया है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदल शेख ने अपने जारी करदा वीडियो बयान में कहा है कि शर्जील मेमन कप्तान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल ना करें। वजारत आज है, कल नहीं होगी। हम कुछ नहीं भूले, ना ही भूलेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। वजह बिलावल सिंध में एक अहम महकमा है, कहने को दूसरे महकमे होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजारत है जो कि सीएम हाउस की बजाय बिलावल हाउस से मिलती है। वो है सिस्टम की वजारत। और जिसके पास सिस्टम होता है उसकी सारा क्या कहते हैं, पांचों घी में होती है, सर उसका कढ़ाई के अंदर होता है। तो आजकल सिस्टम का जो वजीर साहब हैं वो अपना सिस्टम की मिनिस्ट्री के माल को हलाल करने के लिए उल्टी छलांगे लगा रहे हैं। मुझे पता है कि 2 महीने से वही सिस्टम के वजीर साहब सारा कुछ जो मेरे खिलाफ जो खड्डे खोदे जा रहे हैं वो सिस्टम का वजीर है, लेकिन चलता है, कोई नहीं है, सब कुछ चलता है। लेकिन मैं 2-3 रोज से देख रहा हूँ कि मिनिस्टर डिसइंफॉर्मेशन सिंध के वो हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ बड़ी घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम जानते हैं आपको, आप अपनी सिस्टम में रह के बात करें, सिस्टम के लिए करें। आपको सब पहचानते हैं, आपको कोई भूला नहीं है। रुपए की करप्शन किसकी है, किसने किस किस को किस किस अंदाज में लूटा है, कुछ हम नहीं भूले हैं। और हम भूले बिल्कुल नहीं है। मेरे कप्तान के खिलाफ ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मिस्टर शर्जील मेमन साहब अपनी बंद करें। हम सब जानते हैं कौन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म होने जा रहा है। आजकल आपको अगर वो आपकी अगर चल रही है, आजकल चौधराहट चल रही है, तो इसके अंदर बस अपना काम चलाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और साबिका वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि इंपोर्टेड हुक्मरान कहते हैं हमें इंतखाबात कराने की जल्दी नहीं, क्योंकि जो इन्हें लाए हैं वो इनसे खुश हैं, इन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने महंगाई के नाम को मुश्किल फैसले का नाम दे दिया है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मुआहदा हो गया, IMF का मुआहदा होने के बाद सिर्फ हफ्ते 10 दिन के अंदर तकरीबन 15 रुपए की कदर के अंदर कमी आ चुकी है। आज 221 222 का हो चुका था। ये जब रुपया गिरता है तो इससे क्या आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा? बराह रास्त इससे बिजली महंगी होगी, इससे गैस महंगी होगी, इससे पेट्रोल महंगा होगा, इससे डीजल महंगा होगा। जब डीजल महंगा होगा तो किराए बढ़ेंगे। जब ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो खाने पीने की चीजों के कीमत के अंदर इजाफा होता है। बराह रास्त तमाम की जिंदगी पर असर पड़ा है, लेकिन उनको फिक्र नहीं है। कल भी उन्होंने बयान दिया है कि जी हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जिसकी आशीर्वाद से वो आए हुए हैं वो उनसे खुश हैं। जो उनकी मर्जी के फैसले हैं वो हो रहे हैं। अगर अवाम खुश नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर पंजाब जिसको वो अपना गढ़ समझते थे वहां पर इलेक्शन होता है और 75% सीटें, बल्कि हमारे मानने के मुताबिक तो वो पिंडी वाली सीट, PP7 वाली सीट भी इंशाल्लाह ताला रिकाउंट में आएगी, तहरीक इंसाफ के हक में आती हैं। इससे ज्यादा क्या वाज़ेह पैगाम हो सकता है अवाम का? लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं हमें कोई जल्दी नहीं, क्योंकि वो उनको पता है कि वो अवाम के रास्ते से तक पहुंचे ही नहीं इक़्तिदार के अंदर। वो जिस रास्ते से पहुंचे उनकी नजरें आज भी उधर ही लगी नहीं है, और यही रास्ते हमने हमेशा हमेशा के लिए बंद करने हैं। जैकबाबाद में मुलजमों की फायरिंग से मियां बीवी कत्ल। 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजमों ने 15 मदरगार पुलिस स्टेशन के सामने फायरिंग करके मियां बीवी को कत्ल कर दिया और मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शिनाख्त 50 साल खादिम हुसैन और 45 साल सुदूरी खातून के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक जैकबाबाद से है। लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है।
तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी मौका पर जाम बहक। सरगोदा में जंग रोड चक नंबर 92 मोड़ के करीब तेज़ रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवार काजी मंजूर पर चढ़ दौड़ी, जिसके नतीजे में 6 बेटियों का वालिद 12 साला बेटी के हमरा जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गया। मतौफी महकमा सेहत बेसिक हेल्थ सेंटर साबोवाल में मुलाजिम और सरगोदा से आबाई गाँव मौजे चकराला जा रहा था, जो रास्ते में हादसे का शिकार होकर मौत की वादी में चला गया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी मौका पर जाम बहक। सरगोदा में जंग रोड चक नंबर 92 मोड़ के करीब तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवार काजी मंजूर पर चढ़ दौड़ी, जिसके नतीजे में 6 बेटियों का वालिद 12 साला बेटी के हमरा जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गया। मुतौफी महकमा सेहत बेसिक हेल्थ सेंटर साबोवाल में मुलाजिम और सरगोदा से आबाई गाँव मौजे चकराला जा रहा था, जो रास्ते में हादसे का शिकार होकर मौत की वादी में चला गया। हवेली लखा पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। डकैती और चोरी की मुतादिद वारदातों में मतलूब डकैत गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने डकैती करने की नीयत से छुपे हुए मुल्ज़मान सामल उर्फ सामली, अली रजा और मोहम्मद हफीज को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से असलहा बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं हवेली लखा पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। डकैती और चोरी की मुतादिद वारदातों में मतलूब डकैत गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने डकैती करने की नीयत से छुपे हुए मुल्ज़मान सामल उर्फ सांवली, अली रजा और मोहम्मद हफीज को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से असलहा बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुरीदके में कालाशाह काको इंटरचेंज से सियालकोट की तरफ जाते हुए मोटरवे पर तेज रफ्तार वैन व्हील एक्सल टूटने से हादसे का शिकार। 2 मुसाफिर जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 मुरीदके की इमदादी टीम ने 2 जख्मियों को मौका पर तबी इमदाद फराहम करने के बाद 8 जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीदके मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मुरीदके में कालाशाह काको इंटरचेंज से सियालकोट की तरफ जाते हुए मोटरवे पर तेज रफ्तार वैन व्हील एक्सल टूटने से हादसे का शिकार। 2 मुसाफिर जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 मुरीदके की इमदादी टीम ने 2 जख्मियों को मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद 8 जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीदके में मुंतकिल कर दिया। पाकपतन में संगदिल माँ बाप ने मुबैना तौर पर 14 साला बेटी को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या नवाही गांव 143 EB में पेश आया, जहां संगदिल माँ नौरीन ने मुबैना तौर पर 14 साला बेटी गुल बुशरा को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। खावंद ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मेरी बीवी बदचलन थी, बेटी के मना करने पर इसे जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दी है। शुमाली वज़ीरिस्तान में टारगेट किलिंग का एक और वाक़या। तहसील मीर अली के इलाके हरम्स में मोटरसाइकिल सवार मुलज़िमों ने फायरिंग करके उमर नामी नौजवान को कत्ल कर दिया और मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गए। मुकामी पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। याद रहे, रवां हफ्ते के आगाज़ में सियासी जमात के मुकामी रहनुमा को साथी समेत टारगेट किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान में टारगेट किलिंग का एक और वाक़या। तहसील मीरपुर के इलाके हरम्स में मोटरसाइकिल सवार मुलज़िमों ने फायरिंग करके उमर नामी नौजवान को कत्ल कर दिया और मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गए। मुकामी पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। याद रहे, रवां हफ्ते के आगाज़ में सियासी जमात के मुकामी रहनुमा को साथी समेत टारगेट किया गया था। DPO ओकाड़ा हसन इकबाल के अहकामात की रोशनी में DSP जफर इकबाल की ज़ेर निगरानी कार्रवाई। मुतादिद वारदातों में मुलव्विस सांवली डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा पुलिस ने DPO हसन इकबाल के अहकामात की रोशनी में DSP जफर इकबाल की ज़ेर निगरानी में SHO जवेद खान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैती
करने की नीयत से छुपे हुए मुलजमान सावल उर्फ सावली और अली रजा और मोहम्मद हाफिज को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इनके कब्जे से असला नजायज बरामद, जिसमें 1 अदद पंप एक्शन और 2 अदद पिस्टल गोलियां और कारतूस समेत बरामद कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजमान के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया है और पुलिस ने कार्रवाई बराए शनाख्त परेड ज़ेरे मुकदमात में डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा भिजवा दिया गया। दाऊद राजपूत की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, सियालकोट में थाना एयरपोर्ट पुलिस की कार्रवाई 2 किलो 200 ग्राम चर्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। डीपीओ सैयद ज़ीशान रजा ने जराइम की बेखुनी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़िला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर रखे हैं। डीएसपी सर्कल समड़ियाल राना मोहम्मद जमील की सरबराही में एसएचओ थाना एयरपोर्ट के एसएचओ शाहिद महमूद ने टीम के हमरा दौरान गश्त मशकूक शख्स की तलाशी ली, जिससे पिस्तौल और 2 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद हुई है। छांगा मांगा में 1.5 दर्जन वारदातों में मुलविस डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। मुलजमों से 3 लाख रुपए, मवेशी, मज़दा, 10 मोबाइल फ़ोन्स और भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया। डकैत गैंग के सरगना साजिद उर्फ साजू ने गैंग तश्कील दे रखा था। मुलजिम राहसानी के साथ साथ मवेशी छीनने की भी वारदातें करते थे। पुलिस ने पेशा वराना सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए डकैत गैंग को गिरफ्तार किया। डीपीओ सोहेब अशरफ ने बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना छांगा मांगा पुलिस को शाबाश दी है। मॉनसून की बारिशों ने लसबेला में तबाही मचा दी। कई लोग बेघर, कीमती सामान पानी में बह गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुल्तान अंगारिया से। सुल्तान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर मानसून बारिशों की बात करें तो हालिया दिनों से बलूचिस्तान भर में कई रोज़ से बारिशें जारी हैं। जहां लोगों के चेहरे खिल उठे बारिशों से, वहीं लोगों को कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान समेत लसबेला भर में बारिशों ने तबाही मचा दी। इस वक्त मैं लसबेला के इलाके विंदर सरमस्तानी मोला में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ मकीन मेरे साथ हैं, जहाँ मतलब सैलाबी रेला आया था, उसकी वजह से घरों को नुकसान हुआ, उनका सामान जो है पानी में बह गया। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो टेंट दिए गए, उस टेंट के अंदर लोग रह रहे हैं और वहाँ उनके बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मकीन मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हुकूमत की जानिब से उनके लिए टेंट के अलावा और क्या किया गया। आप ये बताएं मुझे कि हुकूमत ने आपके साथ क्या ताउन किया टेंट के अलावा? हुकूमत ने भाई हम लोग के साथ और कुछ नहीं ताउन किया। ये 4 टेंट दिए और कुछ नहीं दिए। सब हम लोग का राशन बाशन सब दे गए, हम लोग को और कुछ नहीं मिला है। ये टेंट दे गए। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? आप हम लोग हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं तो हम लोग को कुछ दे, हम लोग को बच्चे खावे, मदद करे हमारी हुकूमत। इन मकीनों महकमा जंगलात की रवायती लापरवाही से मुल्की खजाने को लाखों रुपए का नुकसान। हारूनाबाद में सड़क किनारे दरख्त चोरी होने लगे। महकमा जंगलात लंबी तान कर सो गया। हारूनाबाद डाहरावाला रोड पर कीमती दरख्त मौजूद हैं जो आंधी से अक्सर टूट कर गिर जाते हैं। महकमा जंगलात की लापरवाही से गिरने वाले दरख्त चोरी होने लगे। मुकामी अमला की मुबैना मिलीभगत से गिरने वाले दरख्त बजाय सरकारी तहवील में जाने की लोग रातों रात काट कर ले जाते हैं। अवामी हलकों ने आला हुकाम से अपील की है कि महकमे को गफलत की नींद से जगाकर मुल्की खजाने को पहुंचने वाले लाखों रुपए के नुकसान पर काबू पाया जाए। मर्दान की तहसील तख्तबाई में मुज़र सेहत चाइना साल्ट की फ़रोख्त खुलेआम जारी है। इंतज़ामिया और खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी मर्दान ख्वाब खरगोश की नींद के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। मासूम शहरियों की जानें खतरात से दोचार हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक चाइना साल्ट इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, जिसका तदारुक वक्त की अहम ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद हैं, ताहम मुतल्लिका दारे माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। बंगा हयात थाना चक बेदी के इलाके में वारदातों का सिलसिला ताहाल न थम सका। नवाही गांव बायलगंज में नामालूम चोर आयल एजेंसी की दीवार तोड़कर कीमती सामान और पेट्रोल चोरी करके फरार। पुलिस थाना चक बेदी खामोश तमाशाई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई, ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका, जो पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है।
मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी लंपी स्किन वायरस के वार जारी हैं। सैकड़ों मवेशी बीमारी वायरस के शिकार हो गए हैं। महकमा लाइव स्टॉक मवेशियों को लंपी स्किन से बचाने में नाकाम। मवेशी मालिकान परेशान। सरकारी तौर पर इलाज कराने के लिए अस्पताल का रुख किया तो वेटनरी डॉक्टर्स प्राइवेट तौर पर इलाज कराने की तरगीब देने लगे। मवेशी मालिकान प्राइवेट तौर पर मज़कूरा जानवरों का इलाज करते कराते जमा पूंजी भी लगा चुके हैं। मवेशी मालिकान का कहना है कि इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमे बीमारी की रोकथाम के लिए हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान ने 4 साल में 40 साल का काम किया। जमात इस्लामी आवाम के पैसे आवाम पर खर्च करती है। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट। इस बात पर सबका इत्तेफाक हो रहा है कि अगर कराची दोबारा से तामीर और तरक्की की तरफ चल सकता है तो सिर्फ जमात इस्लामी का मेयर, जमात इस्लामी की ऑर्गेनाइजेशन, जमात इस्लामी की टीम, उसका डिसिप्लिन, एक बेहतरीन तरीके से शहर की चीजों को लेकर आगे बढ़ना और उसमें खिदमत का काम करना, यही एक रास्ता मौजूद है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जमात इस्लामी का मेयर दोबारा आए, इसलिए आप ये चाहते हैं कि नेमतुल्लाह खान ने जहां तरक्की का सफर छोड़ा था वहीं से हम आगाज करें, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वोट दें जमात इस्लामी को, तराजू को, और जहां चेयरमैन आपके खड़े हुए हैं उन चेयरमैन को वोट देंगे तो वो मेयर मुंतखब करेंगे। ये वोट जाहिर है आप कह सकते हैं कि आप साहब अपने लिए मांग रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं, लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि जमात इस्लामी में जिन लोगों पर लोग एतमाद करते हैं, कभी जमात का मेयर बनता है, जमात इस्लामी के टाउन नाज़िम या जमात इस्लामी के यूसी के चेयरमैन बनते हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये अपनी जेब में पैसे डालते हैं? मैं पूरे शहर के लोगों से सवाल करता हूं कि नेमतुल्लाह खान साहब ने 4 साल में 40 साल के बराबर काम किया। कितनी सड़कें बनाई, कितने फ्लाईओवर बनाए, 32 कॉलेज बनाए। अपने लिए भी अगर ये कह रहे हैं कि मैं वोट दे, तो ये वोट कराची का वोट है। FIA सरगोदा सर्कल ने इंतहाई मतलूब लैंड रूट एजेंट समेत 4 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में इम्तियाज़ अली, अकमल वड़ाइच, हाफिज साजिद हुसैन और खुरम शहजाद शामिल हैं। इश्तिहारी मुलजम अकमल वड़ाइच 4 मुकदमात में मतलूब था। मुलजमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की मज़ीद तफ्तीश जारी है। बड़े जराइम के इंकशाफात होने की तवक्को है। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। करीबी घरों को भी नुकसान। इमारतें गिरने से आवाम परेशान है। मज़ीद जानते हैं इनबार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में, जहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि 5 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई है और इसमें जो है काफ़ी नुकसान आया। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब ये इमारत जिसने बनाई थी उस वक्त इसको क्यों नज़रअंदाज किया गया था कि जब ये इमारत को नुकसान पहुँच गया, अचानक ये इमारत गिर चुकी है। मजीद यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्या वाकया हुआ है, क्या वजूहात है। 5-6 लोगों को नुकसान हुआ, उससे बोलो सामने आया नुकसान भर दे भाई। ये गरीब इंसान नहीं कर सकते, ये रहने का ठिकाना नहीं, रोड पे बैठी हुई रात से। आप इसका नुकसान भरो। जो कोई भी बिल्डर है, इंसानियत है उसके अंदर, तो सामने आ जाए, छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करके इनका ख्याल करे। यहाँ पे पुलिस क्यों नहीं पहुंची जब इतना ऊपर ये घर बनाया हुआ था? इतने ऊपर ये किसी का घर दिख रहा है आपको? ये सबसे ऊपर उसका घर बना हुआ था। 7 माला पे बना हुआ था ये घर, और 7 माला बनने के बाद ये 4 घर लेके जा चुका है। अभी यहाँ से खाली नहीं करते, कोई मर जाता बीच में आके, वो बंदा तो भाग गया, उसे कोई पकड़ नहीं रहा। यहाँ पे उसके घर पे उनके और भी घर है, और भी घर बने हुए हैं यहाँ पे, लेकिन और भी घर जाते हैं उनके तो वहाँ पुलिस पहुंच जाती है पहले आगे कि यहाँ पे नहीं आओ, वो बेच के चला गया। पूरा मलबा बन गया, आंखों के सामने बिल्डिंग गिरी, पूरा प्रेस हो, कौन करेगा, कौन देगा, कौन सुनेगा? हमारी सुनने वाला है? देख रहे हैं लोग, बस देख के आगे पीछे हो रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। और सबने तमाशा बनाया हुआ, सारा सामान हमारा अंदर है, लाखों का सामान अंदर पड़ा हुआ है, मगर किसी को कोई वो नहीं है कि किसी का घर जाए, सामान जाए, कोई फिक्र नहीं है, बस देख रहे हैं तमाशा। जी, इस वक्त जो है आवाम जो है गमो गुस्से में पाई जा रही है कि 7 माला जो है ये बना था और उसके बाद जो है यहाँ पर ये गिरा दिया गया। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर वकाड़ा हसनैन खालिद संपाल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल साउथ सिटी का दौरा। इमरजेंसी में दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। लवाहिकीन से भी फराहम करदा तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की फराहमी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रवैये से मुतालिक दरियाफ्त किया।
मेडिसिन स्टोर, सर्जिकल वार्ड, डेंगू वार्ड, लेबॉर्ट्री समेत दीगर शोबों का मुआयना किया। इस मौका पर कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन इकदाम कर रही है। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल साउथ सिटी ने इकदाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी, फारूक हबीब ताहिर मलिक ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। ताहिर मलिक का कहना था कि हुकूमत के पास शफाफ इंतखाबात के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा ताहिर मलिक का साबिक वफाकी वजीर फारूक हबीब के हमरा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रहनुमाओं को देखकर अवाम ने बेहद खुशी और यकजहती का इजहार किया। मरकजी रहनुमा ताहिर मलिक ने पंजाब में PTI की फतह पर कौम को मुबारकबाद पेश की। ताहिर मलिक का कहना था कि ये जीत इमरान खान के बयानिए की जीत है। कौम ने इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए घरों से निकल कर वोट दिया। इमरान खान मुल्क को कौम की आखिरी उम्मीद है। इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी हुक्मरानी का जवाब खो चुकी है। पंजाब हुकूमत जाने के बाद शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं। इमरान खान की अनथक मेहनत और कोशिशों की बदौलत मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन था। रिजीम चेंज लाकर मुल्क को नाकाबिले तराफी नुकसान पहुँचाया गया। फौरी और शफाफ इलेक्शन अब पूरी कौम का मुतालबा है। इस मौके पर मलक अवैस अवान, आगा शहराज मलक समेत दीगर मुस्लिम लीग नून के मुस्ताफ़ी MPA साहिबजादा मियां जलील अहमद शरकपुरी ने शरकपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शेख रशीद की ऑडियो मजाक नहीं बल्कि साजिश है। पैसे लेने वाली ऑडियो में रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं। खुलूस नीयत से इमरान खान के साथ चल रहा हूँ। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। दानिस्ता की जानबूझ के गलती से नहीं हुई और किसी के कहने पे की, और वो भी मुझे पता किसके कहने पे की उन्होंने। और देखिए, शेख रशीद साहब का तो मेरा लेवल बहुत फ़र्क है। वो बहुत सीनियर आदमी हैं। वो तो मरकज़ में भी आम बंदों को नहीं मिलते और डिस्कस नहीं करते। चाहे जाए कि सूबाई असम्बली के एक आम मेरे जैसे मेंबर के बारे में कमेंट्स करें या जिक्र करें, ये उनके लेवल की बात नहीं है। इसीलिए मुझे फ़ौरन समझ आ गई थी कि कुछ दोस्त जो मेरे साथ राब्ते में थे और मुझे इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए कह रहे थे और समझाए थे, और मैं कायम था कि मैंने अपने दिल से फैसला किया है। सूबा सिंध में 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में हाला शहर में मखदूम पैनल के उम्मीदवारों की तरफ से कॉर्नर मीटिंग। मज़ीद जानते हैं अमजद राजपूत की इस रिपोर्ट में। 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में मखदूम पैनल के उम्मीदवारों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉर्नर मीटिंग में हालांकि मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत मखदूम फजल हुसैन, GDA के मरकजी रहनुमा मखदूम मोहसिन, साबका म्यूनसिपल हाला चेयरमैन मखदूम अम्मार, मखदूम हसनैन, मखदूम जावेद ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग में सेठ अकरम राजपूत की जानिब से आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिंध की रिवायती लुंगी और अजरक का तोहफा पेश किया गया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मखदूम फजल हुसैन ने कहा कि हालांकि बाशऊर अवाम इंशाअल्लाह 24 जुलाई को घर से निकलेंगे और मखदूम पैनल के नामजद करदा उम्मीदवारों को जितवा कर तारीख रकम करेंगे। साबका चेयरमैन मखदूम अम्मार इधर ने कहा कि मैंने अपने साबका चेयरमैनशिप के दौरान हालांकि लोगों के बेलोस खिदमत की और जितना भी मुझसे मुमकिन हो सका हालांकि तरक्की में अपना किरदार अदा किया, और आइंदा भी मेरी कोशिश होगी कि हाला शहर की फलाह के लिए हर मुमकिन कोशिश करूं और आवाम की खिदमत करूं और शहर के मसाइल को संजीदगी से हल करने की कोशिश करूं और आवाम से किए गए हर वादे को वफा करूं और अपना साबका रिवायत को बरकरार रखते हुए आवाम के दुख सुख में शामिल रहूं। मखदूम मोहसिन ने अपने खिताब के दौरान कहा कि 24 जुलाई फैसले का दिन। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल आमिर फिदा पराचा ने सूबाई दफ्तर का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने जारी फलाही मनसूबों की अफादियत के हवाले से तफसीली जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं पेशावर से इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बैतुल माल के MD जनाब आमिर फिदा पराचा ने सूबा खैबर पुख्तनख्वा में कायम इदारे के सूबाई दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सूबे में जारी फलाही मनसूबों की अफादियत के हवाले से तफसीली जायजा भी लिया, जबकि सूबाई डायरेक्टर काजी जफर इकबाल से तफसीली ब्रीफिंग भी हासिल की। MD पाकिस्तान बैतुल माल ने बैतुल माल दरस्ताखान शेल्टर होम्स में फराहम करदा सहूलियात को मज़ीद मयारी बनाने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि यहाँ आने वाले दिहाड़ीदारों, गरीबों, मजदूरों और दूसरे मजबूर अफराद को बाइज़्ज़त अंदाज में बेहतरीन और मेयारी सहूलियात फराहम करना अवलिन तरजीहात में शामिल है।
انہوں نے مزید کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے پسماندہ اور کمزور افراد کو ہر ممکن آسانی فراہم کرنے کے لیے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہر ممکن اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عامر فدا پراچا نے پہلے سے جاری منصوبوں کی بہتری کے لیے مؤثر لائے عمل تیار۔ سعودی عرب میں سفارت خانہ پاکستان میں یوم شہداء کشمیر کی مناسبت سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستانی اور کشمیری شہریوں سمیت سفارتی افسران نے شرکت کر کے 13 جولائی 1931 کے شہداء کشمیر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے سفارت خانہ پاکستان میں منعقد ہونے والی تقریب میں شرکت سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ 1931 میں 22 کشمیری نوجوانوں کی شہادت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جس کے بعد آج تک کشمیری عوام نے بھارتی مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور اپنے خون سے آزادی کشمیر کی تحریک کو زندہ رکھا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد ہوگا اور اس کے باسی آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں گے۔ سفارت خانہ پاکستان کے قائم مقام سفیر فیاض احمد خان کا کہنا تھا کہ 1931 کے شہداء کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کا مقصد کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرنا ہے، جنہوں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت کے مسلح افواج کے ان گنت مظالم کا دیوانہ وار مقابلہ کیا ہے اور بھارت مذموم عزائم کو ناکام بنایا ہے۔ کشمیر بھارت کا نہیں بلکہ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، اور پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ تقریب سے سفارت خانہ پاکستان کے پولیٹیکل سیکرٹری ایمن ندیم سمیت کشمیری رہنما سردار شعیب نے بھی اظہار خیال کیا اور شہداء کشمیر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پنجاب صوبہ بھر کے مارٹ سٹورز پر 100% حلال اشیاء خورنوش کی یقینی فراہمی بنانے کا ٹاسک ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے اسٹور مالکان کو اجزاء کی جانچ پڑتال کے لیے 7 دنوں کی مہلت۔ تمام مارٹس مالکان حرام اجزاء سے تیار شکوک و شبہات والی پروڈکٹس کو الگ رکھنے کے پابند ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب صوبہ بھر کے مارٹ سٹورز پر 100% حلال اشیاء خورنوش کی یقینی فراہمی بنانے کا ٹاسک ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے اسٹور مالکان کو اجزاء کی جانچ پڑتال کے لیے 7 دنوں کی مہلت۔ تمام مارٹس مالکان کو حرام اجزاء سے تیار شدہ شکوک و شبہات والی پروڈکٹس کو الگ رکھنے کے پابند ہوں گے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود نمائندہ کوہ نیوز سلمان شاہ سے۔ سلمان شاہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبے بھر کے مارٹ سٹورز پر 100% حلال اشیاء خورنوش کی یقینی فراہمی بنانے کے لیے ڈی جی فوڈ اتھارٹی میدان میں آگے ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی صوبے بھر کے اسٹور مالکان کو اجزاء کی جانچ پڑتال کے لیے 7 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ تمام مارٹس مالکان حرام اجزاء سے تیار شکوک و شبہات والی پروڈکٹس کو الگ رکھنے کے پابند ہوں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی افسران تمام اشیاء کے معیار کا اثر نو جائزہ لیں گے۔ فوڈ پروڈکٹس میں 100% حلال اجزاء کی چیکنگ کے لیے تمام وسائل برائے کار لائے جائیں گے۔ صوبہ بھر کے سٹورز کو اصلاحی عمل سے گزارنے کے لیے 7 دنوں کی مہلت دی گئی ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی شعیب خان جدون کا کہنا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والے پوائنٹ کے خلاف ایکٹ کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حلال پروڈکٹس کے نام پر ممنوع اجزاء کا استعمال کرنے والی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ جی سلمان شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون نیشنل اسمبلی تحلیل نہیں کرے گی اور نہ ہی چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب کا پی ٹی آئی کو پنجاب میں ٹف ٹائم دینے کا اندیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کوہ نیوز کے چیف رپورٹر حاجی محمد امجد سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، اس وقت فیڈرل منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں شکست کے بعد مسلم لیگ نون کا آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا، اور کیا نیشنل اسمبلی سے اور مسلم لیگ نون جو ہے اسمبلی تحلیل کرنے چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال قبل از وقت ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ عمران خان فاشسٹ کی جماعت نہیں ہے کہ جو ون مین
फैसला करें। मुस्लिम लीग नून की मुशावरत और फिर इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत के बाद ये होगा। और ये 20 नशिस्तें हैं, उस पर 15 इमरान खान ने जीती हैं। इस पर इलेक्शन इस्तीफ़ा क्यों दें हम, और हम क्यों असेंबली तहलील करें, ये हमारा फैसला, ये इमरान खान का फैसला है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि पंजाब असेंबली में अगर इस वक्त अपोजिशन जो है, मौजूदा हुकूमत तो हमजा शहबाज हैं, सीएम है, उनको इस वक्त अक्सरियत हासिल है, क्या अब हमजा शहबाज साहब पंजाब में भी आप लोग इस्तीफ़ा दे के अपोजिशन में आएंगे या कि रजिस्ट करेंगे? हम इंशाल्लाह 22 को इलेक्शन लड़ेंगे। जी, उनका कहना है कि हम 22 को इलेक्शन लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब से इस्तीफ़ा नहीं। लाहौर में सेक्रेटरी सेहत अली जान खान की ज़ेर सदारत वर्टिकल प्रोग्राम्स का जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर आसिम अल्ताफ़, पीडी पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर अवैस गौहर, डायरेक्टर सीडीसी डॉक्टर शाहिद मक्सी, PDEIPI डॉक्टर मुख्तार और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने तमाम वर्टिकल प्रोग्राम्स के जारी मंसूबों और कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया। TB से बचाव के हिफाजती दवा को आवाम तक पहुँचाने की पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया। अली जान खान ने कहा कि TB के मुस्बत केसेस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ज़रिए हिफाजती वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। सेक्रेटरी सेहत TB और एड्स का फैलाव रोकने के लिए जेल कैदियों की स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन को तरजीह दी जाएगी। लाहौर में MD वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास वासा में IT इस्लाहात को अमली शक्ल देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। PI और TB और वासा के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये वासा लाहौर में IT इस्लाहात को अमली शक्ल देने के लिए तबादला ख्याल किया गया। TITB और वासा के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। MD वासा गफरान अहमद ने इजलास की सदारत की है। PITB के डायरेक्टर आतिफ हुसैन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। MD वासा ने कहा वासा लाहौर को सारिफीन के लिए जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। वासा की हेल्पलाइन 1334 के हवाले से PITB सहूलत फराम करती रहेगी। अवामी शिकायत का फौरी अजाला वासा की अवलीन तरजीह है। 1334 हेल्पलाइन पर अवामी शिकायत के अजाला में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। PITB वासा लाहौर में IT इस्लाहात लाने के लिए तकनीकी मदद फराम करेगा। इस इजलास में PITB से डायरेक्टर उस्मान वहीद, राबिया तारिक और तैयबा जमील शरीक, वासा लाहौर से DMD अब्दुल लतीफ, डिप्टी डायरेक्टर फिजा अंजुम, एक्सिन मुदस्सर जवेद समेत दीगर अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। जी, कामरान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा चौधरी हसन जमान PP 158 से कामयाब होने वाले उम्मीदवार मियां अकरम उस्मान को मुबारकबाद देने उनके ऑफिस गए। चौधरी आसम शहजाद, चौधरी एहतशाम इलियास, अब्दुल्ला भट्ट, नायब सदर शुमाली लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेख रिजवान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शुमाली लाहौर और दीगर सियासी शख्सियात भी हमरा थीं। इस मौका पर नौमुंतखब MPA मियां अकरम उस्मान ने मेहमानों की काविशों को सराहते हुए कहा कि मैं चौधरी हसन जमान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस लेकर मेरी हिमायत का ऐलान किया, जिसकी बदौलत आज हम तारीखी फतह हासिल करने में कामयाब हुए। उनका मज़ीद कहना था कि मैं हल्के की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। इंशाअल्लाह मैं इस एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और हल्के के तमाम मसाइल का हल मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। और यहाँ आपको बताएं, लाहौर बादामी बाग के इलाके में शौहर की फायरिंग से 40 साला खातून रास्ता के कत्ल और राहगीर बच्चे के जख्मी होने का मामला। SHO बादामी बाग अब्दुल वाहिद ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को 2 घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िम खालिद अनवर फायरिंग करने के बाद मौका से फरार हो गया था। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। वसीम, मुल्ज़िमान को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, ये बादामी बाग का इलाका था जहाँ पर शोहर ने जो है वो अपनी ही बीवी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और एक राहगीर जो था कमसिन बच्चा, उसको भी फायर छू कर लगा तो उसको भी जो है वो मुकामी अस्पताल जो है वो पहुंचा दिया गया। शोहर की अगर बात की जाए तो शोहर को जो है वो अपनी बीवी पर शक था कि इसके लोगों के साथ मुरासिम है, क्योंकि ये हर वक्त मोबाइल फोन पर जो है वो लगी रहती थी। उसको कई बार उसने मना किया। और यहाँ पर मैं बताता चलूं कि शोहर ने जो है वो तीसरी शादी कर रखी थी इस औरत के साथ जिसको कत्ल किया गया है। राशिदा इसका नाम था और तकरीबन इसकी 40 साल उम्र थी और इसको कई बार जो है वो गलत कामों से रोका जाता था, लेकिन ये बाज नहीं आती थी। आखिरकार जो है वो खामन ने पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए फायरिंग की
और एक कमसिन बच्चा जो राहगीर था वो जख्मी हुआ और अपनी ही बीवी को जो है वो कत्ल कर दिया। लेकिन एसएचओ बदामी बाग ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पुलिस मुजाहमत के बाद जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जा से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। एसएचओ बदामी बाग से जब मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि मुलजिम को जो है वो 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और अपनी बीवी को ये कत्ल करने के बाद यहाँ से फरार हुआ था। मोबाइल फोन की जो है वो सीडी हासिल की गई थी, लोकेशन हासिल की गई थी। जदीद टेक्नोलॉजी को गुरूवे कार लाते हुए एसएचओ बदामी बाग का कहना था कि मुलजिम को गिरफ्तार करके जो है वो हवालात में बंद कर दिया गया है। और कमसिन बच्ची की अगर बात की जाए जख्मी की, तो उसको भी डॉक्टरों की जानिब से जो है वो मरहम पट्टी करने के बाद घर वापिस भिजवा दिया गया है। जी वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फोर्ट अब्बास के नवाही गांव 295 HR में मोहम्मद मुनीर नामी शख्स पर पंचायत में मोहम्मद अमीर नामी शख्स और हवारियों का तशद्दुद। मोहम्मद अमीर ने बारिश का पानी रोकने के लिए बाजार में बन्ना लगा दिया है, जिसको हटाने के लिए कहना जुर्म बन गया। मोहम्मद मुनीर और उसके बेटे को डंडों और कुल्हाड़ियों के वार करके जख्मी कर दिया गया। मुतासरा शख्स की आला हुकाम से फौरी इंसाफ का मुतालबा। मीरपुर माथेलो के नवाही गांव गुलाम हुसैन लगारी में खादिम हुसैन खोखर के घर में मुबैना तौर पर मुसल्लह अफराद ने घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया। खादिम हुसैन, तालिब हुसैन खोखर, अरबाब खातून और दीगर ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मंजूर, जाहिद चांडियो, हुसैन दायो, अली अकबर लगारी और दीगर ने घर पर हमला किया और हमारे ख़ानदान के 3 अफराद को बंदूक की नोक पर यरगमाल बना लिया। 15 लाख रुपए, 4 तोले तलाई जेवरात लूटने के बाद तालिब हुसैन को अगवा करके ले जाया जा रहा था। अहले मोहल्ला पहुंचे तो वो तालिब हुसैन को छोड़कर फरार हो गए। हमने इसकी शिकायत की कि लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। SSP घोटकी और दीगर हुकाम से इंसाफ की अपील करते हैं। डेरा अलायार के करीब कच्ची बंद के मुकाम पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग में एक मुबैना डाकू मारा गया। गोलियां लगने से पुलिस एहलकार हजार खान और सिकंदर मक्सी जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। SHO अब्दुल रऊफ जमाली के मुताबिक डाकू सिकंदर मक्सी नामी शख्स से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने पीछा किया तो मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। लाड़काना में 9 साला बच्चा नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक। इलाका मकीनों ने बच्चे को चांडका अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। आवाम को मायारी अशिया खुरनोश की तरसील को यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों की हाफसाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों के खिलाफ FIRs, जुर्माने आयद किए। 500 लीटर मुजरे सेहत दूध ज़ाया कर दिया गया। लैब में भेजे गए सुर्ख मिर्च पाउडर के नमूना जात के नताइज पंजाब फूड अथॉरिटी के मयार पर पूरा ना उतरने और मिलावट साबित होने पर स्टोर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर नाश्ता पॉइंट को भारी जुर्माना आयद। दौरान चेकिंग 500 लीटर मुजरे सेहत दूध भी ज़ाया कर दिया गया। शाहपुर चाकर में बिलाल काका के कातलों को सजा दिलाने के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने मेन नाका से रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने सख्त नारेबाजी करते हुए कहा, बिलाल काका के कातलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सिंध में गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर अफगानियों को निकाला जाए। मुजाहिरीन की क़यादत जाहिदा डाहरी, सुबहानी डाहरी, अब्दुल सत्तार रेन, डॉक्टर रानू खान और दीगर कर रहे थे। थाना सदर बहावलनगर पुलिस की काविशें रंग ले आईं। 17 साला लड़के को तलाश करके वर्षा के हवाले कर दिया। हारूनाबाद के नवाही गांव 55 फोर से 3 रोज़ कबल लापता होने वाले लड़के उस्मान के वर्षा ने लापता होने की पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़के को तलाश करके वर्षा के हवाले कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी टंडू अलायार के वार्ड 17 के मकीन मसाइल का शिकार। म्यूनसिपल कमेटी वार्ड 17 से गुलाम सरवर सोमरू को आज़ाद हैसियत से इलाकाई मसाइल के हल के लिए खड़ा किया है। मज़ीद जानते हैं नदीम अब्बास की इस रिपोर्ट में। सुमरा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले वार्ड नंबर 17 के आज़ाद उम्मीदवार गुलाम सरवर सुमरो के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से सुमरा बिरादरी के रहनुमा मोहम्मद अनवर सुमरो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि माजी के सियासतदानों ने आवाम को लॉलीपॉप देकर सोने के ख्वाब दिखाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। आवाम के बुनियादी मसाइल हल होने के बजाय उनके मसाइल मज़ीद इजाफा हुआ है। हमारी बिरादरियों को, चाहे सुमरा बिरादरी हो, आपकी बिरादरी हो, चाहे कोई और बिरादरियाँ हो,
ये बड़े लोग हमेशा बरादरियों को बांटते रहते हैं, बरादरियों को टुकड़ों में बांटते रहते हैं, इसलिए उनके मकासद पूरे होते रहे। इस मर्तबा मैं अपनी बिरादरी को सलाम पेश करता हूँ कि हमारी बिरादरी को अब शऊर आया है। हमने पिछली मर्तबा बहुत गलतियाँ की थी, हमारी बिरादरी को जो में बांटा गया था वो इन्होंने अपने मफादात हल किए थे। हमारी बिरादरी को बड़ी कुर्बानियाँ दी, मगर हमारी बिरादरी की कोई कदर ना की गई। अल्लाह ताला हम जीतेंगे, ये कोशिश तो इनके बाद जीत तो नहीं है, आवाम के साथ नहीं है, ये कोशिश करेंगे। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।